So we will start with next topic today. If you remember, ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो आई टोल्ड यू इस चैप्टर के दो पार्ट्स है. पार्ट वन इज सर्कुलर मोशन, उसका थ्योरी और न्यूमेरिकल्स वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट विथ पार्ट बी व्हिच इज रोटेशनल मोशन. So now we will start with rotational motion. Rotational motion. अब rotational motion स्टार्ट करने से पहले you should know what is a rigid body. तो I hope you must have heard, सुना होगा आपने rigid body. ये rigid body क्या होता है पहले वो देखेंगे. Rigid body. So I hope you know what is a rigid body. How many of you don't know what is a rigid body? Rigid body क्या होता है पता है? No. So rigid body का मतलब ये होता है basically, for example, let me take a solid. और याद रखना rigid body is always a solid. तो हमारे पास एक solid body है. We have a solid and you must know कि solid में in case of solid you have periodic arrangement of atoms or molecules. तो आपको basic difference पता होना चाहिए solid, liquid and gas का. In case of solid इसके जो भी particles होंगे, and why I am saying particle is because solids can be made up of atoms or they can be made up of molecules. तो in general atoms या molecules को आप बोलते हो particles. तो in case of solid इसमें जो atoms या molecules होंगे मतलब in general particles, they are well arranged. periodic arrangement होता है, right? And additionally ये जो आपके पास particles है, they are very close to each other, and since they are very close to each other, यहाँ पे जो force of attraction है, it is very strong. मतलब atom या molecule they will attract each other very strongly. इसके लिए हम बोलते हैं कि solid have definite shape and definite size, right? If you talk about liquids, तो अगर आप liquids की बात करोगे तो in case of liquids what you have is आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड्स के या एटम्स है, क्योंकि लिक्विड कैन आल्सो बी एटॉमिक, मोस्टली लिक्विड इज मॉलिक्यूलर. फॉर एग्जांपल वाटर, तो आपको पता होगा वाटर के केस में वाटर मॉलिक्यूल मतलब कौन सा मॉलिक्यूल, H2O. तो इन केस ऑफ लिक्विड्स व्हाट यू हैव इज ये जो मॉलिक्यूल्स है दे आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड. तो सॉलिड्स में particles या फिर atoms, molecules are well organized, proper arrangement है. in case of liquids arrangement ये proper नहीं है, ऊपर से distance भी ज्यादा है. इसका distance atom या फिर molecule का distance भी ज्यादा है. that is why we say that हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं liquids have definite volume but they do not have definite shape. example, अगर आपके पास 1 लीटर का बॉटल है, उसमें पानी डाल दिया आपने, उसी पानी को दूसरे कंटेनर में डाल दिया तो वॉल्यूम रिमेन सेम. 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा लेकिन शेप चेंज हो जाएगा. तो लिक्विड विल टेक शेप ऑफ द कंटेनर. दैट इज व्हाई हम ऐसा बोलते हैं लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप बट दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम. गैस की बात करोगे तो इन केस ऑफ गैसेस द डिस्टेंस इज एक्सट्रीमली लार्ज. किसी भी दो मॉलिक्यूल्स में या पार्टिकल्स में डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज. दैट इज व्हाई वी से दैट gases they do not have definite shape or definite volume. correct? तो ये basic difference याद रखना. solids में particles of the medium, particle मतलब atom या molecule, they are well arranged, they are very close to each other. that is why solids have definite shape and definite volume. अब जब हम rigid body की बात करते हैं तो rigid body का मतलब, पहली बात तो rigid body मतलब solid है, number 1. तो rigid body means you are talking about solids here. अब rigid body का मतलब ये, मैंने अगर इस पे कितना भी फोर्स लगा दिया, if I apply any amount of force, कितना भी फोर्स लगा दो, under the action of any amount of force, इस बॉडी का ज्योमेट्रिक शेप और ज्योमेट्रिक साइज चेंज नहीं होगा. So a rigid body is a body whose geometric shape and size does not change under the action of any force. जितना फोर्स लगाना है उतना लगा दो, but the shape will not change. Practically ऐसा होता नहीं है लेकिन हमको डिफाइन करना है. तो by definition
बाय डेफिनेशन यू शुड नो व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। और हम रिजिड बॉडी की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको रोटेशनल मोशन ये टॉपिक स्टार्ट करना है। और रोटेशनल मोशन, जब हम एक बॉडी का रोटेशन लेते हैं तो ये अज्यूम्ड होता है दैट द बॉडी इज अ रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। तो हाउ विल वी डिफाइन रिजिड बॉडी? A rigid body is a body. A rigid body is a body whose geometric shape and size, geometric shape and size does not change, मतलब remains unchanged under the action of any force, under the action of any force, मतलब irrespective of what is the amount of force acting on it, कम force हो ज़्यादा force हो, doesn't matter, the shape and size will never change. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है that ये जो आपके पास पार्टिकल्स है, आपने कितना भी फोर्स लगा दिया, शेप चेंज नहीं हुआ, साइज चेंज नहीं हुआ, मतलब जो पार्टिकल्स है मीडियम के, the distance between any two particles of the medium will always remain constant. ना, ये दो पार्टिकल का डिस्टेंस लोगे, फोर्स लगाओगे तो भी उतना रहेगा, इन दोनों का डिस्टेंस देखोगे तो भी उतना ही रहेगा, इन दोनों का देखोगे तो भी वही डिस्टेंस रहेगा. सो इट मींस if geometric shape and size remains unchanged, it means that the distance between any two particles of the system remains same. So it means the distance between any two particles of the body, remains unchanged. Any two particles of the body remains unchanged. अब ये रिजिड बॉडी लेना क्यों है? बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रोटेशनल मोशन, थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए. Why to take a rigid body? For example, imagine हमारे पास एक बॉडी है, तो वी हैव अ ब्लॉक बॉडी. मतलब अगर मैंने इस बॉडी पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया, so if I apply an external unbalanced force, तो क्या होगा? No, it will start moving. Always remember Newton's first law of motion, second law of motion. न्यूटन का पहला लॉ आपको बताता है जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा, मतलब बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा. तो मैंने अगर यहाँ पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया तो होगा क्या? दिस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, राइट? यहाँ तक क्लियर? देन इमेजिन हमने इस सेम बॉडी को हमने एक एक्सिस के अलोंग फिक्स कर दिया, मतलब एक एंड जो है यहाँ पे ये फिक्स है. एंड नाउ इफ आई अप्लाई फोर्स, अगर मैं इस पे अभी एक फोर्स लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल आई अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, राइट? एग्जांपल डोर, यू सी, इफ आई अप्लाई अ फोर्स, व्हाट हैपेंस? द बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग इंस्टेड ऑफ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट? तो अब जब बॉडी रोटेट होगा तब क्या होने वाला है वो समझ लो. क्योंकि ये क्या था? ये रिजिड बॉडी था, और क्योंकि ये रिजिड बॉडी था तो इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. जब ये बॉडी रोटेट होगा तो ईच पार्टिकल विल स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, राइट? अगर इमेजिन ये बॉडी रिजिड नहीं होता मतलब पार्टिकल्स कैन मूव. अगर पार्टिकल्स मूव हो रहे होते तो इन दैट केस जब बॉडी रोटेट होगा तो ये जो पार्टिकल्स है ये सर्कुलर मोशन के साथ वाइब्रेशन भी परफॉर्म करते. तो अगर सर्कुलर मोशन के साथ वाइब्रेशन भी परफॉर्म करते तो हमको वाइब्रेशनल एनर्जी भी लेना पड़ता. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज, रिमेंबर. नंबर 1 इज
इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव होगा उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल, विच इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। क्लियर। नंबर 2, जब बॉडी रोटेट होगा तो हम डिराइव करेंगे, आज ही डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी से दैट द बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पता है आपको, हाफ mv स्क्वायर होता है। जब बॉडी रोटेट होगा तो हम बोलते हैं द बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, वो हम डिराइव करेंगे उसका इक्वेशन। अगर ये बॉडी रिजिड नहीं हुआ तो रोटेशन के साथ साथ जो पार्टिकल्स है दे विल आल्सो वाइब्रेट। तो हमको इक्वेशन डिराइव करते वक्त काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन भी लेना पड़ेगा। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन की। हमने कहीं कभी बोला वाइब्रेशनल मोशन नहीं। दैट इज वाई हमको ये बॉडी को क्या लेना पड़ेगा, रिजिड, क्योंकि बॉडी अगर रिजिड होगा तो वाइब्रेशंस नहीं होंगे, अगर बॉडी नॉन रिजिड हुआ तो रोटेशन के साथ वाइब्रेशन भी होगा। राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये पॉइंट याद रखना। इफ द बॉडी इज नॉन रिजिड देन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म वाइब्रेशन अलोंग विथ सर्कुलर मोशन। गुड, तो हम वाइब्रेशन कंसीडर करेंगे क्या, नहीं। गुड, देन वन मोर पॉइंट। अब ऐसा है, आपने डिफाइन तो कर दिया, क्या डिफाइन किया हम लोगों ने, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। नाउ इफ यू नोटिस, जैसे ही एक रिजिड बॉडी रोटेट होगा ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, राइट। सो एज द रिजिड बॉडी रोटेट्स all the particles of the body perform circular motion, और इन सारे के सारे सर्कुलर मोशन का, सर्कल्स का सेंटर कहां पे है, the center of all these circles lie at a common straight line। तो आप देखोगे अच्छे से, अगर देखोगे तो समझ में आएगा, ये जो नीचे के पार्टिकल्स है they are also moving along circles। तो when a body rotates all the particles perform circular motion, और जितने भी सर्कल्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं उन सारे के सारे सर्कल्स का जो सेंटर है वो कहां पे है, एक कॉमन स्ट्रेट लाइन पे, इसको बोलते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू डिफाइन व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन कैसे करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो टॉपिक है रोटेशनल मोशन में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों, तो समझेगा, एक हाथ लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करोगे, एज द रिजिड बॉडी रोटेट्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट, मतलब ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव अलोंग सर्कल्स, द सेंटर्स ऑफ दिस सर्कल lie along a common straight line and this straight line is called as axis of rotation। So as a rigid body rotates, as a rigid body rotates, all the particles of the body, all the particles of the body perform, क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन, परफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर ऐसा लिख सकते हो मूव्स अलोंग सर्कल, moves along circles। Then the centers of all these circles, the centers of all these circles lie along a common straight line, lie along a common straight line। और ये जो common straight line है इसको आप बोलोगे axis of rotation, lie along a common straight line, common straight line। This straight line is known as axis of rotation, is known as axis of rotation। And one more thing जो हमको पता होना चाहिए, for example let us take example of a disk। हमारे पास एक डिस्क है, imagine एक डिस्क है, this is a disk, it is rotating about some axis,
राइट। मैंने ऑलरेडी बता दिया एक्सिस मतलब क्या। एक्सिस मतलब ये कि ये जो डिस्क है, ये जितने भी पार्टिकल से बना होगा, जब डिस्क रोटेट होगा तो सारे के सारे पार्टिकल क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यू हैव दिस, तो आपके पास ऐसे सर्कल्स बनने वाले हैं। इन सारे सर्कल्स का जो सेंटर होगा वो कॉमन स्ट्रेट लाइन पे आएगा। उस कॉमन स्ट्रेट लाइन को हमने बोल दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट। अब ऐसा है अब ऐसा है दैट ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसको आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। मतलब जो बॉडी है उसको परपेंडिकुलर है। एग्जाम्पल, so you will always learn with n number of examples in physics. So this is a body which is rotating about some axis. So you may take some axis here. Let me take one of the axis. What we have, हमारे पास एक body है which is rotating about some axis, right? तो ये जो पेन है, this pen becomes axis of rotation. और आप देख रहे हो ये जो पेन है मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इट इज परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर, टू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। प्लेन ऑफ पेपर, और पेपर क्या था, बॉडी था। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। तो ये याद रखना, या तो ऐसा भी बोल सकते हो, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कल्स, क्योंकि सर्कल का प्लेन मतलब बॉडी का प्लेन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन is perpendicular to the plane of circles. Axis of rotation is always perpendicular to the plane of circle, the plane of circles. Good. Is this clear? तो बिफोर वी गो एट हायर लेवल पे जाने से पहले, हायर मतलब जितना लेवल रिक्वायर्ड है उतना, हमने स्टार्ट किया रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के लिए पता होना चाहिए रिजिड बॉडी, क्योंकि रोटेशनल मोशन जब हम सीखने वाले हैं, इक्वेशन जब डिराइव करेंगे, तो ये अजम्पशन है कि बॉडी ये रिजिड है। रिजिड बॉडी का मतलब जब बॉडी रोटेट होगा तो बॉडी के अंदर के जो पार्टिकल्स है उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। सिर्फ बॉडी रोटेट हुआ मतलब हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो रिजिड बॉडी इज अ बॉडी, और यू कैन से is a body whose geometric shape and size does not change under the action of any force, right? इसका मतलब किसी भी दो पार्टिकल का डिस्टेंस इनसाइड द बॉडी इज फिक्स्ड, कांस्टेंट। then as the body rotates, all the particles of the body perform circular motion. तो the particles of the body are performing सर्कुलर मोशन, इतना पता होना चाहिए आपको। ये जो सर्कुलर मोशन है, सर्कल्स है, उन सबका सेंटर कहाँ पे है, कॉमन स्ट्रेट लाइन पे। उस कॉमन स्ट्रेट लाइन को क्या बोल दिया हमने, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हमेशा, ये जो सर्कल्स है इसको क्या होता है, परपेंडिकुलर। इफ दिस इज क्लियर। अब ऐसा है, अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जाना पड़ेगा 11 के बेसिक्स में। तो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो यू शुड नो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मूविंग है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो उतने ही वेलोसिटी के साथ मूव होता रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू इट, राइट। इसको आप बोलते हो लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि इनर्शिया डिफाइन कैसे किया था, हमने बोला था इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो रिमेंबर, रेस्ट पे होना भी एक स्टेट है, इट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एट रेस्ट, आप बोलोगे आई एम नॉट मूविंग, नो, यस यू आर मूविंग बट विद जीरो वेलोसिटी। तो एट रेस्ट होना भी एक स्टेट है विथ वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है विच इज एट रेस्ट, ये अपने आप खुद का स्टेट चेंज नहीं करेगा, मतलब ये अपने आप मूव होना स्टार्ट नहीं होगा, तो किसने रोका, दैट इज अ क्वेश्चन।
किसने रोका इसको स्टेट चेंज करने के लिए? इसके खुद के मास ने। तो आप बोलते हो मास इज इनर्शिया, मतलब लीनियर मोशन में इनर्शिया कौन प्रोवाइड कर रहा है? मास, बॉडी का खुद का मास उसको अपोज कर रहा है टू चेंज इट्स स्टेट, करेक्ट। देन अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को रोटेशनल मोशन के लिए एक्सटेंड करता हूं, रोटेशनल मोशन में क्या होगा? रोटेशनल मोशन में हमारे पास एक बॉडी है विच इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग, मतलब कि रोटेट हो सकता है। जैसे दरवाजा हो रहा है क्या रोटेट? नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है। अभी नहीं हो रहा है मतलब ये रेस्ट पे है, रोटेशनली रेस्ट पे है, राइट। ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन, करेक्ट। डोर लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा क्या? कर ही नहीं सकता, अनलेस वो आपने वहां से बिजागरी निकाल ली फिर लेके गए दरवाजे को उठा के, राइट। हम ऐसा करते हैं? हम ऐसा नहीं करते आइडियली। तो द थिंग इज, ये जो डोर है अभी इट इज क्लोज्ड, इट इज नॉट रोटेटिंग, मतलब इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किसने रोका? तो जैसे लीनियर मोशन के केस में, सिमिलर टू लीनियर मोशन, जैसे लीनियर मोशन के केस में एक बॉडी रेस्ट पे ही है, इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, किसने रोका था? इसके खुद के मास ने। वैसे ही रोटेशनल मोशन में भी स्टेट का जो चेंज होता है वो अपने आप नहीं होता। तो किसने इसको रोका है? तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हमको ये देखना है कि रोटेशनल मोशन में, जैसे लीनियर मोशन में इनर्शिया किसने प्रोवाइड किया था? रोटेशनल मोशन में इनर्शिया किसने प्रोवाइड किया था? इट्स ओन मास, राइट। वैसे ही रोटेशनल मोशन में इनर्शिया कहां से आ रहा है हमको वो देखना है। सो द next topic is rotational inertia as analogous quantity to mass, to translational inertia। तो रोटेशनल इनर्शिया, या तो इसको और एक नाम है, इसको आप बोलते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, और यू कैन कॉल दिस एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज an analogous quantity, as an analogous quantity, analogous मतलब similar, quantity to mass, right। then before we define this, हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो वापस एक बार बता रहा हूँ, आइडिया इज वेरी सिंपल, 11 का बेसिक्स पता होना ही चाहिए, देयर इज नो स्किपिंग, पता होना ही चाहिए। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, unless an external unbalanced force acts on a body, the body does not change its state। तो who is stopping the body to change its state? is its own mass। मास को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो लीनियर मोशन में इनर्शिया किसने प्रोवाइड किया? मास ने किया। इनर्शिया डिफाइन कैसे किया था? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, राइट। तो पहले हमको वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। So what do you know? We know that inertia is the tendency of a body. We know that inertia is the tendency of a body to oppose, इसको अपोज करता है, टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, टू अपोज एनी चेंज in its state of motion, in its state of motion। and as you know, in linear motion मतलब in translational motion, the inertia is provided by its own mass। so in case of translational motion, in case of translational motion, inertia is provided by the mass of the body, is provided by the mass of the body, right। Then
Similarly, in case of rotational motion, the quantity which opposes change in its rotational state is known as rotational inertia or moment of inertia, right? So similarly, in case of rotational motion, the physical quantity which opposes change in what? Change in rotational state of a body is known as, क्या बोला इसको हमने, is known as rotational inertia or moment of inertia. Rotational inertia or moment of inertia. मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ, जहां जहां पे रोटेशन की बात होगी वहां पे आप मोमेंट ये वर्ड यूज करते हो. एग्जाम्पल, जब हमने टॉर्क डिफाइन किया था 11th में, तो टॉर्क के दो नाम थे, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल. तो मोमेंट ऑफ फोर्स अगर आपको याद होगा, तो जब एक सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल मैंने जब डोर को क्लोज किया तो मैंने सिंगल फोर्स अप्लाई किया था. तो when a single force is responsible to produce rotation, then the quantity is called as moment of force. When two forces are responsible to produce rotation, then the quantity is called as moment of couple. और दोनों का कॉमन नाम क्या है? टॉर्क. यहां तक क्लियर? अब what we have done so far, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिर्फ डिफाइन किया है, अभी तक मैथमेटिकल इक्वेशन आया नहीं, तो मैथमेटिकल इक्वेशन भी लाएंगे. मैथमेटिकल इक्वेशन लाने से पहले we have to first derive what is kinetic energy of rotation. हमको kinetic energy of rotation derive करना है. तो let us look at what is kinetic energy of rotation. इसको आप rotational kinetic energy भी बोलते हो, right? तो we will derive first और बाद में step by step we will also write it down. बहुत सिंपल सा केस है ये भी. तो आपके पास एक रिजिड बॉडी है, लिखना कैसे वो भी देखते जाएंगे. कंसीडर रिजिड बॉडी ऑफ सम मास m, राइट, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं पे भी हो सकता है, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, तो कहीं से कहीं पे एक्सिस है. सो यू हैव अ रिजिड बॉडी, कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सम पॉइंट O. The body is rotating with constant angular speed omega. इस चैप्टर में 3-4 डेरिवेशन आएंगे, कहीं पे स्पीड कांस्टेंट होगा, कहीं पे स्पीड चेंजिंग होगा. स्पीड चेंजिंग मतलब एक्सेलरेशन. यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन इज 0. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हमको स्पीड कांस्टेंट लेना है, क्या डिराइव करना था? काइनेटिक एनर्जी. किसका? रोटेशन का. लीनियर मोशन का आपको काइनेटिक एनर्जी याद है, हाफ mv स्क्वायर. v मतलब क्या था? स्पीड. कौन सा स्पीड? लीनियर स्पीड. ये भी अंडर द अजम्पशन होता है कि द स्पीड इज कांस्टेंट, राइट. तो हमको अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिराइव करना है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम बनेगा, क्योंकि लीनियर मोशन में आप जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो आप लिखते हो हाफ mv स्क्वायर, मतलब ये लिख रहे हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है. अगर लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में भी स्पीड मतलब वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट. तो जब आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हम बॉडी को रोटेट करेंगे विद कांस्टेंट वेलोसिटी. लेकिन कौन सा वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी. तो कंसीडर
a rigid body of mass n is rotating about some axis of rotation passing through point O with constant angular velocity. तो याद रखना आगे और एक डेरिवेशन आएगा जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है. तो इफ यू फॉरगेट तो हमेशा याद रखो कि इसको लीनियर मोशन के साथ कंपेयर करके चलना है. नाउ रिजिड बॉडी जब हमने डिफाइन किया तो हमने बोला रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. तो अज्यूम दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ large number n of n particles, right? So the body is assumed to be made up of large number of particles of masses. इसका mass m1, इसका mass m2, m3, m4, m5, m6 मैं मान लेता हूँ n particles है तो mn. So this rotating rigid body is assumed to be made up of large number of particles of masses m1, m2, m3, m4, mn. बट जैसे आपको दिख रहा है m1 इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग है, m2 इसका डिस्टेंस अलग है, m3 इसका डिस्टेंस भी अलग है, mn का डिस्टेंस भी अलग है. सो लेट दिस पार्टिकल्स बी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं वो भी समझेगा. Perpendicular distances r1, r2, r3, r4, rn from axis of rotation, right? लिंक करना पड़ेगा आपको. आपके पास एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है जो रोटेट हो रहा है विद कांस्टेंट ओमेगा and the axis of rotation passes through some point O. The body is assumed to be made up of large number of particles of masses m1, m2, m3, m4 up to mn. These particles are at perpendicular distances r1, r2, r3, r4, rn. कहां से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों लिया? इमेजिन मेरे पास एक बॉडी है विच इज रोटेटिंग, राइट? और याद रखना रोटेटिंग रिजिड बॉडी का शेप आप जो चाहो वो ले सकते हो. तो हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? आर्बिट्ररी शेप, मतलब रैंडम शेप, एनी शेप. अब इफ दिस बॉडी इज रोटेटिंग और हमारे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे, इस पार्टिकल का डिस्टेंस मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेजर कर रहा हूँ. तो मैं कहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं इसको 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 यहाँ से भी कर सकता हूँ. तो व्हाट डू यू सी? ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मिनिमम डिस्टेंस है, राइट? क्योंकि यू कैन मेजर आप एक पार्टिकल का डिस्टेंस ए पॉइंट से, बी पॉइंट से, सी पॉइंट से, डी पॉइंट से, ई पॉइंट से, किसी और पॉइंट से भी मेजर कर सकते हो. तो सबसे कम डिस्टेंस कहां से है? सी पॉइंट से. मतलब कब है? जब परपेंडिकुलर हो तब. तो ये जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बोर्ड पे देख रहे हो. बट व्हेन यू ट्राई टू इमेजिन, मैं वापस बता देता हूँ वही केस. So if I take a particle, यहाँ पे पार्टिकल मार्क कर दिया, ये था एक्सिस ऑफ रोटेशन. मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन, राइट, परपेंडिकुलर. तो इफ यू सी इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है आपका, यू विल ऑलवेज सी मिनिमम डिस्टेंस विल बी समथिंग लाइक दिस. यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, मतलब परपेंडिकुलर है. किसको परपेंडिकुलर है? एक्सिस ऑफ रोटेशन को. तो द वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट. अभी तक हमने क्या किया? हमने एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी कंसीडर किया है which is rotating about some axis of rotation passing through O with constant angular velocity. The body is supposed to be made up of large number of particles n of masses m1, m2, m3, mn at perpendicular distances r1, r2, r3, r4, rn. अब इसका एक कॉपी कर लेते हैं just to understand. The thing is, आपने बताया ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. अब आप एक डोर को रोटेट कर रहे हो. इमेजिन उस दरवाजे पे आपने 1000 पॉइंट्स को मार्क कर दिया. तो जब दरवाजा रोटेट होगा, राइट, तो जितने भी पार्टिकल्स थे सारे के सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे.
और ये जो सर्कुलर मोशन होगा हर एक पार्टिकल का, इसका वेलोसिटी कितना होगा? कांस्टेंट होगा। सारे के सारे पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सेम होगा। सो व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स, द एंगुलर वेलोसिटी of all the particles will be constant, but linear velocity will not be constant. क्यों? इमेजिन, थोड़ा यहाँ पे मैं पार्टिकल्स को हटा देता हूँ, एक दो पार्टिकल्स ही रखते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो यू शुड रिमेंबर वन थिंग, ये चीज ध्यान रखो हमेशा, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। किसका? सारे के सारे पार्टिकल्स का। लेकिन लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सर्कुलर मोशन याद होगा, इसलिए पहले सर्कुलर मोशन हम करते हैं, बाद में रोटेशनल पे जाते हैं। तो यू शुड रिमेंबर, हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और अगर आपको याद है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? इट इज टैंजेंट। तो लीनियर वेलोसिटी इज टैंजेंट एट एवरी पॉइंट। और अगर आपको याद होगा तो v इक्वल टू आर ओमेगा। अब हर एक पार्टिकल का ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन आर हर एक पार्टिकल का अलग अलग है। तो अगर आर चेंज हुआ तो v भी चेंज होगा। तो यू सी, इवन दो द बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब क्योंकि लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो हम हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे अलग अलग से। तो पहला जो पार्टिकल है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर। लेकिन v1 क्या था? v1 था r1 ओमेगा। ओमेगा 1 मत लिख देना, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सेकेंड पार्टिकल का लीनियर स्पीड क्या होगा? r2 ओमेगा। ऐसे nth पार्टिकल का क्या होगा? rn ओमेगा। तो पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m1, लेकिन v1 क्या है? r1 ओमेगा, तो r1 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली जब बॉडी रोटेट हो रहा है तो हर एक पार्टिकल मूव हो रहा है, मतलब हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल ये कितना आएगा? हाफ m2 v2 स्क्वायर, मतलब r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल का कितना होगा? हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। nth पार्टिकल का कितना होगा? हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो यू सी, हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। अब जब एक बॉडी रोटेट होता है, तो बॉडी तो बना है पार्टिकल से, हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है। तो पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना? पूरा बॉडी किससे बना है? इन्हीं पार्टिकल से बना है। तो अगर मैं सारे के सारे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को ऐड करते गया तो क्या मिलेगा मुझे? टोटल काइनेटिक एनर्जी किसका? ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। तो याद रखना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, के रोट, rotational kinetic energy is nothing but addition of kinetic energy of first particle plus second particle plus third particle plus nth particle। यहाँ तक क्लियर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या था? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, पहले हाफ को कॉमन निकाल लिया और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। आप बोलोगे ऐसा क्यों, इधर क्यों नहीं लिख सकता? लिख सकते हो, लेकिन हमको कंपेयर किससे करना है? याद रखना, हाफ एम वी स्क्वायर से। तो हाफ पहले लिखा और ओमेगा को बाद में लिखा, तो कंपेयर करने में थोड़ा इजी जाएगा। तो आपने निकाल लिया हाफ और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन। तो when you take out half and omega square common, ब्रैकेट के अंदर बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn
एन आर एन स्क्वायर, करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। नाउ आपको ये पता होना चाहिए, अगर मेरे पास 1000 पार्टिकल्स है तो मैं 1000 टाइम लिखूंगा क्या, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर, लिखते जाओ, राइट। तो इसके लिए हम आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो पहले वो समझ लो कि ये समेशन कन्वेंशन होता क्या है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू 1000 करना है, तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, सिग्मा मतलब समेशन, किस पे, नंबर पे, नंबर के लिए आई जे के जो आपको पसंद है वो यूज कर लो। लेट अस कॉल दिस एज आई रन्स फ्रॉम, रन्स मतलब स्टार्ट कहां से हुआ, 1 से, फ्रॉम 1 टू कितना 1000। इसका मतलब ये होता है कि आई की पहली वैल्यू क्या होगी 1, दूसरी क्या होगी 2, तीसरी क्या होगी 3, चौथी क्या होगी 4, कब तक होगी 1000 तक। और समेशन सिग्मा लिखना मतलब इसको प्लस करते जाना है, राइट। ऐसा ही एक नोटेशन है प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के लिए आप लिखते हो पाई, प्रोडक्ट के लिए यू डिनोट इट बाय पाई। पाई आई रन फ्रॉम 1 to 1000 ऑफ आई, इसका मतलब होता है 1 into 2 into 3 into 4, कब तक 1000 तक। ये आपको स्टेट बोर्ड में तो लगने वाला है नहीं, ये आपको शायद ही जेई में लगे। तो फॉर यू नोइंग ओनली समेशन इज सफिशिएंट। अब क्योंकि आपको ये पता है तो हमारे पास एक ब्रैकेट में टर्म था m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर अप टू mn स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 समेशन एम आई आर आई का स्क्वायर, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड्स एट n। तो ये आ गया शॉर्टकट नोटेशन, राइट। ध्यान चाहिए, हाँ, last bench, you need to pay attention here. So you have half inside bracket summation I runs from 1 to n mi ri square omega square, good। now एक बार ये मिल गया, अभी आप बोलोगे बट वी नो दैट फॉर लीनियर मोशन मतलब ट्रांसलेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ पे है लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो जो बच गया, कौन बच गया, m। तो यहाँ पे जो m था, लेकिन लीनियर मोशन में m क्या था, इनर्शिया था। तो यहाँ पे जो बच गया, कौन बच गया, ये ब्रैकेट का टर्म, ये क्या होगा, इनर्शिया होगा। कौन से मोशन का, रोटेशनल मोशन का। हेंस दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब यू हैव टू नो वन मोर थिंग, जब भी आप मास की बात करते हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, फॉर एग्जांपल इस क्लास में आप सब बैठे हो, हर एक का अपना अपना मास है, लेकिन ऐसा है कि यू आर लाइक पार्टिकल, है ना, एक मास फिर गैप फिर दूसरा मास फिर गैप फिर तीसरा मास फिर चौथा मास, सो ऑन सो फोर्थ। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन। डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, मास यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बीच में कुछ नहीं है, right? This is called as discrete mass configuration, right? But imagine मेरे पास अगर ऐसा सिस्टम हो जिसमें मास हर जगह पे हो, एवरीवेयर। एग्जाम्पल इसी क्लासरूम में है, लुक एट द फ्लोर। ये जो फ्लोर है, ऐसा है क्या, मास है फिर नहीं है, नहीं होगा तो नीचे गिर जाओगे। मैंने अगर एक छोटा सा पीस निकाल दिया फ्लोर से, क्या होगा, ध्यान नहीं होगा तो डायरेक्ट होता है ना, घर में डक्ट होता है, राइट। तो जब मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हर जगह पे हो, उसको बोलते हो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जब मास कहीं है कहीं नहीं है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट। और ये मैथ्स में भी लगेगा आपको, प्रोबेबिलिटी में लगने वाला है ये, पढ़ोगे मैथमेटिक्स इसी साल पढ़ोगे, जिसका मैथ्स है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे यही है सब।
गुड, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखते हो तो तब लिखते हो समेशन एम आई आर आई स्क्वेयर आई रन फ्रॉम 1 to n। जब मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो, जैसे हमारा ये केस है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या करते हैं, फॉर्मूला में कुछ तो चेंज करेंगे। हमेशा याद रखो मैथमेटिक्स में जब कंटिन्यूअस कुछ चीज हो तो समेशन को हटा के लिखते हो इंटीग्रेशन। देन एम आई तो लिख नहीं सकता मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल जैसा कुछ था नहीं, मास क्या था, कंटिन्यूअस था। क्योंकि मास कंटिन्यूअस था तो अब इस केस में हम करते क्या है, हम इमेजिन करते हैं, क्या इमेजिन करते हैं कि ये जो बॉडी है इसका एक छोटा सा पीस होगा, इस पीस को नाम देते हैं मास एलिमेंट, और इस मास एलिमेंट का मास है dm। तो यहाँ पे mi की जगह पे लिखते हैं dm, राइट। अब ये जो dm है, ये जो मास है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक डिस्टेंस पे होगा, इस डिस्टेंस को बोल देंगे r। तो आर आई स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे r स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज रिटन एज r स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन। और वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन हो तो क्या लिखोगे, समेशन mi ri स्क्वायर। दोनों सेम है, लेकिन एक केस में मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है और एक केस में कंटिन्यूअस है। नाउ अगर आपको याद है, जैसे ही आपने नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया तो उसी टाइम पे उसका एसआई यूनिट और डायमेंशंस फाइंड करना। अब एसआई यूनिट मतलब मास, मास किस में आता है, किलोग्राम, ये किस में आता है, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज एसआई यूनिट। यहाँ पे भी यू सी दिस इज मीटर का स्क्वायर एंड दिस इज किलोग्राम, तो क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस निकालोगे तो मास के डायमेंशंस होते हैं m⁻⁴, डिस्टेंस मतलब r होता है l⁻²। तो डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर m1 एंड l2। देन अब जैसे हमने यहाँ लिखा, क्या लिखा, लीनियर मोशन में क्या लिखा हमने, हाफ mv स्क्वायर, राइट। इसका इक्विवेलेंट क्या आया, हाफ समेशन mi ri स्क्वायर आई रन फ्रॉम 1 to n ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है ब्रैकेट में, इसको हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल I से, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये I करंट नहीं है क्योंकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ नहीं रहे, हम क्या देख रहे हैं, रोटेशनल मोशन। तो दिस I इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कंपेयर करो, कंपेयर करोगे हाफ की जगह पे हाफ, लीनियर इनर्शिया मतलब मास, उसकी जगह पे रोटेशनल इनर्शिया आए, v स्क्वायर की जगह पे ओमेगा स्क्वायर। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि लीनियर मोशन पता होगा तो रोटेशन ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस चैप्टर के स्टार्ट में देखा है कि v इक्वल टू यू प्लस एटी को क्या लिखा था, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी को क्या लिखा था, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। गुड, तो यहाँ तक क्लियर। तो वापस एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे एंड वी विल आल्सो कीप नोटिंग डाउन द थिंग्स। तो अब लिखना कैसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। दिस इज द क्वेश्चन विच इज एक्सपेक्टेड इन बोर्ड एग्जाम्स आल्सो। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको बोला डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो यू शुड नो हाउ टू राइट डाउन। तो कहाँ से स्टार्ट करना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऑलवेज सबसे पहला काम है टू ड्रॉ डायग्राम इफ रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने बोला कंसिडर अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी ऑफ आर्बिट्ररी शेप। तो हमारे पास एक रैंडम शेप का बॉडी था, राइट। इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सम पॉइंट O with constant angular velocity omega, राइट। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, कंसिडर a rigid body of mass m
rotating with constant angular velocity omega, constant angular velocity omega about an axis passing through some point O, राइट। इसके बाद आप इमेजिन करोगे, लेट द बॉडी इज मेड अप ऑफ n particles of masses m1, m2, m3 up to mn at perpendicular distances r1, r2, r3, rn from axis of rotation। तो यही आपको लिखना है, जो अज्यूम किया है वो लिखना है। तो imagine या assume, imagine the body to be made up of n number of particles। इसका मास क्या था, m1, m2, m3, m4 of masses m1, m2 up to mn, राइट। और ये कहाँ पे है, which are at perpendicular distances, r1, r2, rn, कहाँ से, from axis of rotation। अब आप ये बोलोगे, even though the angular velocity of all these particles is same, but linear velocities are not same since they depend on distance। So even though omega, मतलब angular velocity is same for all the particles, but linear speeds are different, which are given by तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है किसी भी क्वेश्चन को लिखने का, आंसर को लिखने का। डायग्राम, एक्सप्लेन बेसिक एंड गो अहेड पॉइंट बाय पॉइंट। गिवन बाय स्पीड क्या होगा, v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इक्वल टू r3 ओमेगा, vn इक्वल टू rn ओमेगा। एक बार v मिल गया तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, किसका, हर एक पार्टिकल का। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ, और वो भी मेंशन कर देना, एज द बॉडी रोटेट्स ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो हमको पता है। सो काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर, तो पहले पार्टिकल का क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी half m1 v1 square, which is half m1, what is v1, r1 square omega square। Similarly, kinetic energy of particle 2 will be half m2 r2 square omega square। Similarly, kinetic energy of nth particle will be half mn rn square omega square। अब total kinetic energy of rotating body will be sum of all this kinetic energies। या फिर लिखने का और एक तरीका भी है, आप बोल सकते हो since energy is a scalar quantity, है ना, kinetic energy क्या होता है, स्केलर होता है, energy is a scalar quantity, तो you can directly add all these energies। अगर वेक्टर होगा तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्शन देखना पड़ता है। यहाँ पे ये क्या है, स्केलर है, तो आप बोल सकते हो therefore टोटल काइनेटिक एनर्जी किसका, ऑफ
rotating rigid body, rotating rigid body is what? Kinetic energy of rotation Ke rot equal to पहले पार्टिकल का एनर्जी प्लस दूसरे पार्टिकल का एनर्जी प्लस तीसरे पार्टिकल का एनर्जी, कब तक? nth पार्टिकल, क्योंकि रोटेटिंग रिजिड बॉडी पार्टिकल से ही बना है, अगर पार्टिकल हटा दिए तो बॉडी रहेगा नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, राइट? तो हाउ डू यू फाइंड टोटल एनर्जी? इज बाय जस्ट एडिंग। तो अभी क्या करना है? अभी ऐड करते जाना है। तो दिस इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अप टू nth पार्टिकल हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसमें से हाफ कॉमन निकालोगे, ब्रैकेट में लिखोगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, कब तक? mn rn स्क्वायर, एंड ऑल्सो यू विल टेक आउट ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। गुड। अब इसको लिखोगे आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में हाफ समेशन किसका? एम आई आर आई स्क्वायर का, कहां से? 1 से लेके n तक ओमेगा स्क्वायर, राइट? इक्वेशन नंबर 1। then you will say that we know that, what do you know? Kinetic energy of translation. We know that kinetic energy of translation मतलब linear motion translation is given by half, तो मैं लिख देता हूं kinetic energy K translation is equal to half mv square. Equation number 2. So from equation number 1 and 2, by comparing 1 and 2, we conclude that, what is your conclusion? जैसे linear motion में mass is inertia, वैसे rotational motion में this quantity inside bracket is inertia. So from equation number 1 and 2, we see that, we conclude that summation mi ri square I runs from 1 to n is similar को physics में बोलते हैं analogous। सेम दिखने वाले क्वांटिटीज को यहाँ पे साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं एनालॉगस। तो समेशन mi ri स्क्वायर इज एनालॉगस टू मास इन लीनियर मोशन, therefore summation I runs from 1 to n mi ri square is known as क्या बोलोगे इसको? रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? अब जैसे ही आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया, इमीडिएटली टॉक अबाउट कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या था? डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हुआ तो फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय कैसे लिखते हो इसको? आप लिखते हो इंटीग्रेशन किस पे? डीएम पे। इंटीग्रेशन डीएम, मैंने बताया था डीएम को क्या बोलते हैं? मास एलिमेंट। And what is r distance of that mass element from axis of rotation? So integration r square dm, right? Moment of inertia is denoted by I. Moment of inertia is denoted by I. इसको हमेशा कैपिटल I से डिनोट करेंगे, denoted by I. अब इसके SI यूनिट्स क्या थे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और डायमेंशंस क्या थे? m1 क्योंकि किलोग्राम मतलब मास, मीटर मतलब डिस्टेंस, l raised to 2, m1 l2। क्लियर?
सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके आगे का नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।